In last lecture, we have completed this sum, that is calculation part, whether a dividend is paid or not paid, plus number of shares to be issued, how many numbers of shares to be issued for raising of investment expenditure 5 lakhs, how many number of shares to be issued for raising what investment of rupees 5 lakhs, right? If you require 5 lakh rupees, see, if you require 5 lakh rupees, so what number of shares you will going to issue, right? So that part we have done in last lecture, means all the calculation part we have done in last lecture. Now the main thing is what is the main thing here? They have asked to calculate what? So how does the approach affect the value of M Limited? Means calculation part we have done in last lecture. Now we have to do the verification and analysis. And if it is asked in exam, then only you have to make it. Otherwise, don't make it. Otherwise, don't do the verification and analysis. If it is asked, then only you have to do it. So see, show how does the affect, means model affect, that is approach affect what the value of M Limited. How does the approach affect the value of what? M Limited. So for that, we have to do the verification and analysis. So calculation part we have done in last lecture, right? So calculation part, keep everyone with yourself, because calculation part we need for the purpose of what? Verification. So let's now see. Now we are doing the verification of model, or verification under model. And this model also known as dividend irrelevancy theory. Dividend irrelevancy means whether you pay the dividend or not, your market value of the company will remain same. That is why it is known as what? Dividend irrelevance. Means relevance nahi hai, dividend se koi relevance nahi hai iska. Dividend pay karo ya mat pay karo, your market value remain, means your market value of the company will remain same. Ye aisa bola hai, aisa, right hai? What? Whether you pay the dividend or not, your market value of the company will remain same. तो बस वही उसी का वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू सेम आ रहा है क्या, बराबर है, उसी को वेरीफाई कर रहे हैं कि यस और नो, भाई इसने जो बोला है वैसा हो रहा है क्या, बराबर है. तो चलो वेरिफिकेशन कर लेंगे. नंबर पर्टिकुलर्स इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, एंड सेकेंडली व्हाट इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. So first part will be what? Your existing shares. Existing shares everyone knows, that is 25,000 shares. It is given shares at the beginning, that is existing shares 25,000 shares. Then second part, existing के बाद देखो new share भी issue किया आपने, you have issued new share also. Estimation किया, उसके basis पे कितना new share आप issue करोगे वो भी मालूम पड़ गया आपको. तो new shares के लिए देखो रेफर करो पीछे का, क्या था? new share issued. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो ना बेटा, तो प्लानिंग होना चाहिए ना बेटा. न्यू शेयर्स इशूड, बराबर है. आप अकाउंटिंग करने के बाद फाइनेंस करते हो, फाइनेंस के बाद उसका मैनेजमेंट करते हो, एवरीथिंग. इसलिए बोलते हैं ना फाइनेंस इंक्लूड्स अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग नहीं होगा तो फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग करने में दिक्कत होगा. समझे कि नहीं? तो दोनों इंटरलिंक है, बट दोनों का कंसेप्ट अलग है. इंटरलिंक है क्योंकि अकाउंटिंग होगा तो ही फाइनेंस होगा, फाइनेंस होगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा, फिर प्लानिंग करेगा, सब कुछ. समझा कि नहीं? तो न्यू शेयर्स इशूड. अब न्यू शेयर इशूड कितना है बेटा, जरा देखो, कल हमने कैलकुलेशन किया है. तो फर्स्ट इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड होगा तो डेल्टा एन कितना है बताओ फटाफट आंसर, कम ऑन फास्ट जल्दी. और हाँ, किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ इधर से कि क्या आंसर था कल का, याद रखना. अगर उस किसी ने बताया नहीं तो फिर वो रिमूव हो जाएगा. 3571. 571. वेल डन अंजलि. 3571. वेल डन नीरज. वेल डन शांतन. 3571. ठीक है, 3571 करेक्ट है. यस पौशाली, वेरी गुड, वेरी गुड ध्रुव. राइट, चलो. नाउ सेकंड वन, व्हाट इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड में कितना था डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड का? 73. अब्बास, वेल डन आशुतोष, वेरी गुड बेटा. वेल डन श्रेया, वेल डन नीरज, अक्षत, वेरी गुड. 2273. 2273. Yes. So this was the calculation part
which we have done in last lecture. Yes, 7-3. Well done. Okay. Very good, Akshat. Very good, Ashutosh. Well done, Dhruv. Chalo, we get the total. So third part will be what? Third step will be what? Total number of shares. Total number of shares at the end. Total number of shares at the end. So what will be the total? 25,000 plus 3,571 कितना हो गया? Yes, correct. So इधर हो गया 28,571 और here 27,273. Yes, correct. Well done, Shreya, Akshat. Very good, Nisha. Yes, correct. Now, yes, बेटा, right है, right है. चलो, अब ये भी पार्ट हो गया अपना. Now, बेटा ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वी गॉट इट. बेटा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो मिल गया आपको. अब मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, फॉर कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू, व्हाट विल यू गोइंग टू डू? प्राइस पर शेयर निकाला है ना आपने, मार्केट प्राइस पर शेयर. तो आ जाओ. फोर्थ स्टेप विल बी व्हाट? आपका मार्केट प्राइस per share. Now market price per share is what? First case, if dividend is declared. तो देखो आपने कल कैलकुलेशन किया है. If dividend is declared, so what will be the market price in case of if dividend is declared? कितना था market price? Yes, correct. 105. Okay, very good बेटा. So 110. 110 किसका है बेटा? उससे दूसरे का. दूसरे का है. मतलब if dividend is not declared is having 110. ठीक है, 110. चलो अब बेटा अगर ये हो गया तो फाइनल आंसर तो पता ही है आपको क्या आएगा. तो फाइनल आंसर आएगा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स. मार्केट, ये जो पार्ट है 5 मार्क्स का है, याद रखो. ठीक है, इसी में गलती करते बच्चे, नहीं पाते है. बहुत इजी. मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, right, at the end of the year. At the end of the year. Right, at the end of the year. So how will you going to find out the market value? Simple, multiply it. Step number 3 multiplied by step number 4. Step number 3 को step number 4 से multiply कर दो, आपको market value मिल जाएगा. ठीक है. So 28,571 multiplied by 105. So कितना आ रहा है? 28,571 into 105. Yes, correct answer. Well done Neeraj. Well done Dhruv. Very good बेटा. ठीक है. 29,000 means 29,019 means 29 lakhs 99,000 कितना बेटा? 955. Okay. So this is the market value of the company. And in second case, what is the market value? Yes, Shreya, very good beta. Yes, very good Neeraj. Well done beta. Well done Pranati, Anushka, very good. So in second case, it is showing 30 lakhs 30 lakh 30 means 30 lakhs ही हो गया देखा जाए तो, नियर अबाउट. पॉइंट की वजह से वो डिफरेंस आता है. ठीक है. So this is what beta the market value of the shares, right? Market value of shares, we have done it. Yes. Now everyone see here. Now what is here? Beta, iska model, dividend irrelevancy model says that what? Whether you pay the dividend or not, your market value will remain same. बराबर है. मार्केट वैल्यू विल रिमेन सेम. तो देख रहे हो सेम है ना, नियर अबाउट है कि नहीं एकदम. अब आप बोलोगे सर सेम किधर है? बेटा देखो यहाँ क्या है, पॉइंट में आंसर आया था, राइट?
3571 पॉइंट, ये सब पॉइंट का आंसर है जो राउंड ऑफ किया। तो पॉइंट अगर राउंड ऑफ करोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, देयर मे बी सम डिफरेंसेस। और इधर वही 30-40 का डिफरेंस रहेगा। कितना डिफरेंस है? हाँ वही मतलब 100 के अंदर, तो वो पॉइंट की वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है, तो नियर अबाउट क्या है? नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली सेम है। अप्रोक्सीमेटली मार्केट वैल्यू देख रहे हो आपका सेम है, सेम मार्केट वैल्यू इज व्हाट सेम। कितना डिफरेंस है? 70 to 75 ऐसा कुछ डिफरेंस होगा ना। ठीक है, तो वो पॉइंट की वजह से, बराबर है, पॉइंट की वजह से। यस यस शांतन। तो नियर अबाउट योर मार्केट वैल्यू इज व्हाट सेम, मार्केट वैल्यू इज व्हाट सेम whether you pay the dividend or not। तो ये अपना एनालिसिस है, इसका मतलब इसका थियरी प्रूफ होता है, इसका थियरी प्रूफ हो गया, राइट। तो वेरिफिकेशन अंडर एमएम मॉडल, डिविडेंड इररिलेवेंसी थियरी बोल रहा है whether you declared or pay dividend or not, whether you declare dividend or not, your market value of the company will remain same। देखो थियरी में लिखा है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी विल रिमेन सेम। समझा कि नहीं? हाँ, मार्केट प्राइस को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो तो हमेशा फ्लक्चुएट होता है मार्केट में, बट इसके थियरी के बेसिस पे आपका जो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी है वो रिमेन सेम, और है सेम। नियर अबाउट पूरा वही है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट डिफरेंस होता ही है, एकदम नियर अबाउट। ऐसा थोड़ी है कि इधर 25 लाख इधर 30 लाख है, इतना ऐसा थोड़ी है, राइट। वो नियर अबाउट एकदम राउंड ऑफ फिगर 70 to 75 का डिफरेंस ड्यू टू पॉइंट की वजह से होता है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी व्हाट सेम है, अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे हम लोग वर्ड में, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि सेम है, नियर अबाउट। ओके, तो चलो एनालिसिस डाल दो अभी एवरीवन, एनालिसिस। नाउ एनालिसिस अपने ओन वर्ड्स में डाल सकते हो आप। क्या लिखोगे एनालिसिस में? दस from the above analysis, from the above verification, whether dividend, whether dividend paid or not, whether dividend paid or not, the value, right, the value, that is market value लिख देता हूं पूरा, the market value, the market value of the company, market value of the company remains the same, remains the same। ब्रैकेट में वर्ड डाल देना अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, डन। ये हो गया अपना ये क्वेश्चन का आंसर। अब जाके फिनिश हो। सो you have to do the verification and analysis like that, then only your answer will be complete। That's it। हो गया सबका? Done everyone? Done? चलो, now the next part, now the next part is what, अब ये हो गया नेक्स्ट पार्ट, मतलब नेक्स्ट सम आज के लिए अपना नेक्स्ट सम। तो आ जाओ नेक्स्ट सम में आ जाओ। तो हो गया ना सबका? डन एवरीवन? कोई बाकी है? चलो आ जाओ, अभी हम नेक्स्ट सम देखेंगे जो कि मैंने आपको भेजा है। सी द क्वेश्चन इज व्हाट, रमा लिमिटेड, यस वेल डन बेटा। चलो क्वेश्चन में ध्यान दो। रामा लिमिटेड हैड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। बेटा 1 लाख इक्विटी शेयर हैड है, हैड मींस ये क्या हो गया आपका n नंबर ऑफ शेयर एट द बिगिनिंग, ओके, ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 10 मतलब ये P0 हो गया, P0 स्टार्टिंग का प्राइस। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st January 2017, द शेयर्स आर करेंटली बीइंग कोटेड एट पार इन द मार्केट। तो वही हो गया ना सेम। In the wake of the removal of the dividend restraint, the company now intends to pay a dividend of rupees 2 per share. Now company intends to pay what? Dividend of rupees 2 per share. तो ये हो गया D1 dividend वाला पार्ट, D1 dividend
company intends to pay a dividend of rupees 2 per share, right? Now, after that, what it belongs to? What it belongs to a risk class whose appropriate capitalization rate is what 15%. So capitalization rate means KE. ये भी आ गया. Using Modigliani-Miller model, assuming no tax, तो वैसे भी tax assume करना नहीं है इधर. A certain price of the company's shares as it is likely to prevail at the end of the year. ठीक है, we have to ascertain the price of the company's shares. Okay, whether dividend paid or not, means whether dividend is declared or not. When no dividend is declared means dividend is not declared. Also find out the number of equity shares, number of new equity shares, number of what? New equity shares that company must issue. That company must issue to meet its investment need of rupees 4 lakh. अपने को फाइंड आउट करना है कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट नीड है 4 lakhs, वो मीट करने के लिए उसको कितना नंबर ऑफ शेयर इशू करना पड़ेगा. तो दिस 4 lakh इज व्हाट? आई इन्वेस्टमेंट. Assuming that dividend is paid and the earning per share works out to be 2.2. तो earning per share means आपका E है E, बट E है ना आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, पर शेयर के बेसिस पे दिया है. ये क्या बोल रहा है? पर शेयर के बेसिस पे 2.2. नहीं तो अभी तक हर सम में क्या रहता था? डायरेक्ट दिया रहता था 2 लाख 3 लाख लाइक दैट. बट इधर क्या बोल रहा है? 2.2 पर शेयर है ना, तो सिंपल ना यार. अभी 2.2 है मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स कितना है? 1 लाख है. 1 लाख शेयर्स है, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया? 2,20,000. सो दिस 2,20,000 इज व्हाट? योर ई. दैट्स इट. सब आ गया क्वेश्चन में. स्क्रीनशॉट लेना तो लेके रख लो, ठीक है, बट सब आ गया. एवरीथिंग इज ओके, बराबर है. अब इसी के बेसिस पे अपने को कैलकुलेशन करना है. सो लेट्स डू द कैलकुलेशन. ठीक है, चलो तो आ जाओ कैलकुलेशन के लिए. So for doing the calculation, चलो solution. Company name is what? Rama Limited. ठीक है, कंपनी नेम इज रामा लिमिटेड. चलो फटाफट. अब सबसे पहले वही हेडिंग डाल दो आपका, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस पर शेयर. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस. Calculation of market price. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस अंडर व्हाट? MM मॉडल. अंडर MM मॉडल. MM मॉडल भी लिख दिया तो फिर भी चलेगा ना. और डिविडेंड इररिलेवेंसी थियरी. MM मॉडल, राइट? Okay beta, so first what is the formula? That is P0 is equal to, everyone remember it formula? Yes, क्या है? P1 plus D1 divided by what? 1 plus K. So this is the formula which you all have to remember it. Okay, normal formula. चलो अब first case number 1 is what? When dividend is declared, so what will be the market price per share? So when dividend is what beta? Declared. When dividend is declared. चलो कैलकुलेशन करो, आ जाओ. व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड में फर्स्ट P0 पता ही है सबको. P0 आपका कितना है बेटा? 10 रुपीज इज इक्वल टू P1. P1 मींस प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. यस, क्या बात है शांतन. शांतन का आंसर भी आ गया. वेरी गुड बेटा, करेक्ट है. सो P1 वी हैव टू फाइंड आउट प्लस D1 इज व्हाट? D1 मींस डिविडेंड per share, that is what beta? 2 rupees, which is given in the question. Dividend per share is 2 rupees. Then 1 plus K means cost of capital is what? 15%. 15%, that is 0.15. 15% can be written as 0.15. Yes. Now 10 is equal to P1
plus 2 divided by what? 1 plus 0.15, that is 1.15. 1.15. Well done Neeraj, very good beta. Well done Akshat, Poshali, very good. ठीक है, तो चलो अब क्या हो जाएगा अपना, डायरेक्टली कर लो, कैलकुलेट कर लो अभी. सो 10 इंटू ये 1.15 इधर आ गया तो इंटू हो जाएगा 1.15 इज इक्वल टू P1 प्लस 2. सो 10 इंटू 1.15 11.5 is equal to P1 plus 2. So 11.5, ये प्लस 2 है, इधर आ गया तो माइनस 2 is equal to P1. So finally answer will be what? 9.5. Market price per share is 9.5. Right? This is when dividend is what? When dividend is declared. In the case what beta, when dividend is declared, your market price per share is 9.5. That's it. Chalo. Now second case. Yes beta, very good Shreya, Pranavati, Minal, Nisha, very good. क्या बात है नीरज, well done beta. Yes, correct answer है 11.5, right. Well done beta. Now the next one, when dividend is not declared, जिसका आंसर भी आ गया है, करेक्ट है वो. When dividend is not declared, या no dividend is declared, जैसा लिखा है क्वेश्चन में वैसे लिख देता हूं मैं. When no dividend is declared, when no dividend is declared, so आ जाओ, फॉर्मूला पता ही है, P0 आपका है 10 is equal to P1 plus 0 divided by 1 plus 0.15. राइट है, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड 0 हो गया. सो बस अभी क्या हो गया, कॉमन 10 इज इक्वल टू P1. अभी 0 तो खत्म हो गया, कोई मतलब नहीं अभी. 1.15. सो 10 into 1.15 is equal to what beta? P1. So P1 is what? 11.5. 11.5 is equal to what? Your P1. Yes. So your P1 is 11.5. That's it. आ गया, P1 भी आ गया अपना. We got our P1 also. Got it? Yes beta. Well done Dhruv. Very good Nisha, Poshali, very good. Yes, correct है. चलो अब बेटा P1 भी हो गया ना. अब now the next calculation is for what? Calculation of number of equity shares. तो चलो अभी next calculation अपने को करना है. Calculation of what? Calculation of number of equity shares. Right है? चलो calculation of number of equity shares to be issued. To be issued to raise, कितना अमाउंट रेज करना है? टू रेज रुपीज 4 lakhs. To raise rupees 4 lakhs. And you all know the formula. That is number of shares to be issued, that is delta N, is equal to what? The formula is what? I, that is investment, minus E, earning, minus N into D1 divided by P1. So this is the formula, common formula for getting the number of shares. Yes, very good Shantan, very good Neeraj. Yes, both are correct. Very good beta. 40,000 shares. Well done, well done. Shabash. चलो तो डेल्टा एन इज इक्वल टू, अभी कैलकुलेट करते हैं बेटा सेम. अच्छा अभी देखो ध्यान देना, अब ये जो चेंज इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम दोनों केस में निकलते हैं, इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है?
कौन से, देखो अगर कुछ नहीं बोला है तो दोनों केस में निकालना है, बट क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या बोल रहा है, कौन से केस के लिए निकालना है ये देखो। ओनली यू हैव टू कैलकुलेट, सी हियर क्वेश्चन में आपको दिया है, देखो इधर बोल रहा है ऑल्सो फाइंड आउट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी मस्ट इश्यू टू मीट इट्स इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ 4 लाख एज्यूमिंग दैट डिविडेंड इज पेड। सिर्फ बोल रहा है व्हेन डिविडेंड इज पेड के लिए, तो व्हेन डिविडेंड इज नॉट पेड का अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इधर क्या बोल रहा है इफ डिविडेंड इज पेड। यस, वेरी गुड वैशाली, शाबाश। चलो तो आ जाओ, लेट्स डू इट। और वेरी इंपॉर्टेंट सम है फॉर 15 मार्क्स, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी एंड डिविडेंड डिसीजन का। सो चलो अब कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। सो आई इज व्हाट, योर 4 lakhs, योर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर इज व्हाट, रुपीज 4 lakhs, ओके, माइनस, अब जरा इधर देखना, अर्निंग, अर्निंग, ठीक है। अब ये जो अर्निंग है ना, अर्निंग, अब ये अर्निंग आपको डायरेक्ट नहीं दिया है, पर शेयर का दिया है 2.2, बट आपको नंबर ऑफ शेयर्स तो पता है ना, आपका बिगिनिंग में कितना था, 1 लाख शेयर्स। तो आ जाओ, तो अर्निंग निकाल सकते हो आप, 1 लाख इंटू 2.2, 1 लाख इंटू 2.2, यस, फिर माइनस, और ये एन का तो पता ही है सबको, 1 लाख शेयर्स होता है, 1 लाख, ये लिख देता हूं मैं, ये शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स, यहाँ 1 लाख शेयर्स इंटू D1, D1 आपको पता ही है बेटा, D1 कितना अपना, ₹2, डिवाइडेड बाय P1, P1 कितना आया था देख लो जरा, और वो भी कौन से केस में देखना है ये, हाँ इधर लिख देना, यहाँ केस लिख देना, व्हेन शो कर देना इधर, व्हेन डिविडेंड इज व्हाट, पेड, व्हेन डिविडेंड इज पेड का केस है। तो बच्चा लोग, when dividend is paid, so when dividend is paid, where is it, here it is, when dividend is paid, so your market price is what, 9.5, when dividend is paid at that time your market price is what, 9.5, so aa jao, so 9.5, P1 is what beta, your 9.5, right, 9.5, ठीक है, बराबर है, all the information we have shown here. Now चलो 4 lakhs, ये तो 4 lakhs हो गया आपका, माइनस 1 lakh इंटू 2.2, that is 2,20,000, right? This is what 4 lakh rupees minus 2,20,000 rupees minus डिविडेंड को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 lakh इंटू 2 मीन्स 2 lakh rupees, right? डिवाइडेड बाय 9.5, 9.5 जो मार्केट प्राइस पर शेयर था, प्राइस पर शेयर, ओके। सो स्टेप बाय स्टेप मैं शो कर दे रहा हूं इधर, देन 4 lakhs, what 4, so 4 lakh minus, right, 4 lakh minus, now this is 2,20,000 minus 2 lakhs, so the answer is what, 20,000 divided by 9.5, so here 4 lakh minus 20,000, देखो पूरा एकदम एक एक स्टेप कर दिया मैंने, 3,80,000 divided by 9.5, 3,80,000 divided by 9.5. Now finally your answer will come 3,80,000 divided by 9.5, 40,000 जो कि दिख रहा है मेरे को आंसर, काफी बच्चों ने दिया है, so 40,000 shares to be issued. So this is what, यहाँ दिखा देना अपना डेल्टा एन, नंबर ऑफ शेयर्स,
number of shares to be issued, that is 40,000 shares. Right? So this is what 40,000 shares the company must have to issue. Right? Clear? 40,000 shares. If dividend is what? If dividend is declared or if dividend is paid, then at that time company issue what? 40,000 shares to raise what? Investment of rupees 4 lakhs. To raise investment of rupees 4 lakhs. और साइड बाय साइड उनका क्या था बेटा? अर्निंग्स भी था 2,20,000 का, वो भी याद रखना, वो भी कंसिडरेशन करना है. अर्निंग ऑल्सो 2,20,000, अर्निंग वॉज 2,20,000 एंड आउट ऑफ दैट अर्निंग उन्होंने डिविडेंड भी दे दिया. उन्होंने डिविडेंड कितना दे दिया? 2 lakhs. राइट? डिविडेंड कितना पे कर दिया था? 2 lakhs. सो अकॉर्डिंगली वी हैव कैलकुलेटेड. सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली वी गॉट इट दैट कंपनी विल गोइंग टू इश्यू 40,000 शेयर्स. कंपनी विल गोइंग टू इश्यू 40,000 शेयर्स. मतलब अब कंपनी के पास टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा? 1 lakh तो बिगिनिंग में है, एंड एज पर आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40,000 न्यू इशू. सो नाउ द शेयर्स विल बी व्हाट? 1,40,000. बराबर है? तो ये आगे का करना नहीं अपने को, खाली याद रखना. तो कितना शेयर्स हो जाएगा कंपनी के पास? अभी एक्सपेक्टेशन आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो तो कितना शेयर्स हो जाएगा? 1,40,000. आउट ऑफ दैट 1 lakh पहले से है. ठीक है? तो 1,40,000 शेयर्स हो गया. तो अभी ये प्रैक्टिस करना अच्छे से, मालूम पड़ा. और पीछे का जरा कैपिटल बजटिंग चैप्टर रिवाइज करो. कैपिटल बजटिंग समझे कि नहीं? उसका प्रैक्टिस करो जो भी है उसमें. कैपिटल बजटिंग, सेंसिटिविटी, डिसीजन ट्री, बराबर है, कैपिटल रैशनिंग, एवरीथिंग, उसको जरा रिव्यू करो इस बीच में, मतलब सैटरडे संडे. तो ये था अपना सम जो इधर होता है. बराबर है? अब हम मिलेंगे डायरेक्ट जब भी अपना लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर